Very healthy morning, all of you. How are you all? So, we are just going to start a chapter number 11. I think we have just continued the chapter. Okay, and beta, it is very important you can read this chapter at yourself also. आपको ये चैप्टर टीचर तो पढ़ा रही है, मैम तो पढ़ा रही है, साथ साथ आपको ये चैप्टर खुद भी पढ़ना है. ओके, एंड डू योर वर्क ऑन टाइम. आपको आपका काम बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. यस बेटा, टुडे in the last class we have already read about the different means of mass communication. I think you have already done this flow chart. Means of communication, personal communication and mass communication. And what is the example of personal communication? Tell me. Letter, telephone, fax, email. And what is the examples of mass communication? Newspaper, magazine, radio, television, cinema and internet. So beta, in the last class we have already read about the newspaper, radio and we have just continued television. Got it? So television, it is my favorite and very interesting means of mass communication. So the television was another milestone in the field of communication. Who invented the television? Yesterday I have also told you about this. Yes, the television was invented by John Baird in 1926. Who invented the television? John Baird in 1926. In this we can hear as well as see the various entertainment programs. आप इस टीवी में क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं, चीज़ें देख भी सकते हैं एंड नीचे लिखी हुई हेडलाइंस को आप पढ़ भी सकते हैं. Got it? There is a different channels also. Some sports channels, some devotional channels, some news channels, some kids channels. So there is a lot of channels. They can provide you a entertainment on a television. We can also watch important event like match, live matches देख सकते हैं आप. Nowadays there is a smart TV, just like a smartphone. Smart TVs भी आ गए हैं because we can connect through the internet, क्योंकि हम इसमें इंटरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं. So the another means of mass communication, that is a cinema. What is this? Cinema. Have you gone earlier cinema? आप कभी सिनेमा गए हैं? Definitely you have to gone. आप गए होंगे. So cinema is a very important means of mass communication. Many movies get positive message to make up people aware of important and political. So tell me which is your favorite movie? Tell me this. अपनी favorite movie का नाम बताइए. Beta, there is a lot of person and every student have a different favorite movies. So beta, people have take the movies क्यों बनाई जाती है? ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, उनको अपने साथ रिलेट कर सकें एंड द मूवीज़ हु आर रिलेटेड विद द सोशल इश्यूज़, political and cultural issues. Nowadays every town and city has a one or more cinema halls. यानी कि आप देखिए हर जगह पर एक से दो सिनेमा हॉल्स आपको मिल जाते हैं. And in the big cities there are multiplex of watch movies. Tell me that what is the difference between cinema and multiplex? क्या डिफरेंस है सिनेमा में और मल्टीप्लेक्स में? यस, सिनेमा में बेटा ओनली वन मूवी लगती है. देयर इज़ अ हॉल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्सन लाइक 200-300 पीपल्स आर सिटिंग एट द वन टाइम और वो मूवीज़ देख रहे हैं. बट इन अ मल्टीप्लेक्स क्या है? अन अ मल्टीप्लेक्स हैज़ अ 2 और मोर सिनेमा हॉल ऑन द सेम ऑफ वन टाइम. यानी कि एक ही फ्लोर पे एक से ज़्यादा मूवीज़ एक टाइम पे चलती हैं. देयर इज़ अनदर हॉल्स, यानी कि एक ही जगह पर अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं. उसी को कहा जाता है मल्टीप्लेक्स. मल्टी मीन्स
दो से ज़्यादा. So multiplex means a multiplex has two or more cinema halls on the same floor or mall. सो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉल जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, तो नाउ यू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्स. सो द अनदर वन, देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टुडेज डेट, दैट इज़ अ इंटरनेट. दैट इज़ अ internet. Internet is the latest development in the field of mass communication. Beta, now in today's world, internet is the most important thing to get a information or a knowledge. It is a system to join millions of computer and smartphone all across the वर्ल्ड. यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट को कनेक्ट करके वर्ल्ड में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की नॉलेज को ले सकते हैं. सो यू कैन फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन, एनी टॉपिक. इट इज़ देयरफॉर यू कैन कॉल्ड एज अ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इंटरनेट को क्या कहा जाता है? द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ओशन मीन्स समुद्र. आपने देखा होगा सागर, ठीक है, यानी कि उस सागर में का क्या है ये इंटरनेट इज़ द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. लाइक बेटा, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू ना, इफ़ वी डिडेंट नो, कुछ कन्फ्यूजन होती है तो वी कैन चेक ऑन द गूगल और वी कैन चेक ऑन द इंटरनेट कि कौन सी चीज़ क्या है. सो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वेबसाइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन वेबसाइट. यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट होती है. सो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ डिज़ायर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. यानी कि इफ़ वी वॉन्ट टू सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, सो वी कैन गो थ्रू द पर्टिकुलर वेबसाइट. सो एवरी स्कूल हैज़ अ वेबसाइट. आपके स्कूल की भी वेबसाइट है. समटाइम यू आर पेइंग फीस देयर, समटाइम यू आर चेकिंग द सिलेबस देयर, समटाइम यू आर चेकिंग द डेट शीट्स देयर. सो एवरी स्कूल हैज़ अ वेबसाइट. फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ योर स्कूल, सो वेबसाइट विल बी विजिटेड. यानी कि अगर हमें स्कूल का नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो वी कैन जस्ट राइट द स्कूल वेबसाइट. तो हमें वहाँ आपकी स्कूल की पिक्चर्स, इवेंट्स, टेलीफोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है. All the means of mass communication play very vital role. Vital means बहुत important role, have creating awareness of among people and the issues of national and international importance. Beta, in a today's world we get lot of information through the internet. So आप देखिए, अभी आपकी क्लासेस जो चल रही हैं, दिस इज़ अ वर्चुअल क्लासेस बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली. अगर इंटरनेट नहीं होता, सो इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, एट द टाइम ऑफ कोरोना, सो हाउ कैन वी आर टेकिंग द क्लासेस? सो वी आर जस्ट कनेक्टिंग थ्रू द इंटरनेट ओनली. सो हैव यू नो अबाउट दैट? अब आपको पता चला कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपका लिए इंटरनेट होना. बेटा, internet, it's not for playing the games or using the social websites. Basically beta, internet is a, I have already told you, internet is a ocean of information and knowledge. आप उससे जितनी information लेना चाहते हैं, they will provide you. जितनी knowledge लेना चाहते हैं, they will provide you. Our government advertise its policies through the advertisement in newspaper and the television to let know about these policies. Private company also advertise their product of promote them. As you know that some students is asking me, ma'am, what is the advertisement? When you are watching the TV or are watching a serial, आप देखते हो बीच बीच में ads आती हैं, like a phone की ad, किसी soap की ad, shampoo की ad, bike की ad. So these are the advertisement. And वो advertisement देते क्यों हैं? टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. यानी कि इफ़ यू नो दैट कि अगर महेंद्र सिंह धोनी दे आर सेलिंग अ पेन, यानी कि वो एक पेन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इट मीन्स द कंपनी विल प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ पेन. यानी कि वो पेन का एडवर्टाइजमेंट करके कर रही है कि धोनी यूज़ करता है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट. और एक्टर यूज़ कर रहा है तो यू कैन यूज़ दिस. सो
दीज आर द एडवर्टाइजमेंट जो कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होती है. सो बेटा योर चैप्टर इज़ फिनिश. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियली चैप्टर फॉर यू. एंड इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द वीडियो, बेटा वॉच दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस, कम से कम 2 से 3 बार आप ये वीडियो देखो. देन आफ्टर दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेरी. इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको कोई लगता है कि मैम हमें पता नहीं चलता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेबसाइट, सो यू कैन जस्ट टाइप ऑन अ गूगल पे टाइप करो, डिक्शनरी में फाइंड आउट करो. नहीं समझ आता है जस्ट टाइप ऑन गूगल और उसमें चेक करो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. सो बेटा इट विल हेल्प यू. ओके, सो this is the oral or question. You can write this question in your notebook. Again I am just repeating, write these questions in your notebook. The answer is also there. What is the fortnightly newspaper? Fortnightly means semi monthly. The answer is here. Fortnightly newspaper comes once in a 15 days. Who invented the radio? Tell me. Galileo Marconi. When was the television invented? In 1926. Which means of communication is referred to as the ocean of information and knowledge? The answer is internet. So beta you can do this also. Fill in the blanks. I am writing the answers over there. So these 2 things you can do in your notebook. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस हेल्दी. बेटा बाहर जाइए तो यूज़ एंड मास्क एंड सैनिटाइज ऑल्सो. बी टच विद द स्टडी. डोंट पैनिक फॉर द डेट शीट आ जाएगी, आपको मिलेगी डेफिनेटली. एंड जस्ट कीप स्टडिंग. पढ़ो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. थैंक यू सो मच बच्चे.